Variety of Life, chapter number 5. Nomenclature is very important topic in this chapter, and its page number is 68. So nomenclature. First we discuss question, which is very important for long question, that why nomenclature is required, who devised this system, define binomial nomenclature and give its rule. So first of all we discuss what is nomenclature. A system of choosing names for organism is called nomenclature. नॉमेनक्लेचर का मतलब है नाम देने का, नाम देना, किसी भी पौधे, जानवर या ऑर्गेनिज्म को नाम देना या साइंसी नाम देना नॉमेनक्लेचर कहलाता है. सिस्टम ऑफ चूजिंग नेम्स फॉर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. सो व्हाई देयर इज़ अ नीड फॉर नॉमेनक्लेचर, इसको डिस्कस करने के लिए कुछ सब हेडिंग्स बना लें. पहली हेडिंग है नो सिस्टम ऑफ नेम्स. As plants and animals have been given common names by the people of the earliest time, because there is no system of names, and second reason is that no proper system was used in choosing common names. Second main reason is that different names for same organism. The same plant or animal may have different names in various regions. For example, onion, its common name in Urdu is pyaz, but in different regions of Pakistan, it is also known as ganda or wasal or basal. In different countries, it would have another set of names. And similarly, amaltas, argwad, gurmala, golden shower, parging cassia are common names for the same plants. So different names for the same organisms create too much confusion. इसी वजह से नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत पेश आई. एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि सेम नेम फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. In some cases, a single name refers to several different plants or animals. For example, what is bluebell? So, dozen of plants with bell-shaped flowers are called bluebells. Dozen mean दर्जनों पौधे ऐसे हैं जिनके bell-shaped flower होंगे तो उनको bluebell कहा जाता है. Similarly, the word blackbird would mean a crow as well as raven. Raven mean पहाड़ी कौवा. अब आम कौवे और पहाड़ी कौवे के अंदर फ़र्क होता है साइज़ का भी और वॉइसेस का भी. So, same name for different organism also creates too much confusion. And there is no scientific basis for a common name, because common names have no scientific basis, so it creates too much confusion. जैसे to a biologist, a fish is a vertebrate animal with a backbone, fins and gills, but silverfish is an insect. नाम देखें इसका सिल्वर फिश. अब ये इंसेक्ट है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर होगी और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होगी. लेकिन फ़िश और उधर से सिल्वर फिश और उधर से कोई भी फ़िश हो गई तो ये क्रिएट कन्फ्यूजन. एंड अ क्रे फिश, जेली फिश एंड स्टार फिश डू नॉट फिट द biologist definition of a fish. So it creates too much confusion. To avoid this confusion, इस confusion को दूर करने के लिए beginning of nomenclature, Carolus Linnaeus 1707 से लेकर 1778 तक, a Swedish botanist devised a system for naming and classifying all the organisms known to him. His system is used today internationally to different plants
and Linnaeus published the list of names of plants in 1753. So beginning of nomenclature started with the work of Carolus Linnaeus, who was a Swedish botanist. Basically ही डिवाइज्ड अ सिस्टम फॉर नेमिंग. इसी ने ही नोमेनक्लेचर का आगाज़ किया लिनियस ने, और इसने प्लांट्स, एनिमल्स और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को साइंसी नाम देने का तरीका शुरू किया. एंड ही टुक ऑल द साइंटिफिक नेम्स फॉर लैटिन लैंग्वेज. इसने जितने भी साइंसी नाम रखे वो लातीनी ज़ुबान से रखे. नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. यहाँ आप हेडिंग भी बना लें और इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करें. तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? बेसिकली इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नेम्स इन विच ईच स्पीशीज हैज़ अ साइंटिफिक नेम comprising of two words. The first part represents generic name and it is written in capital letter, while second name is a species name which starts with a small letter. This scheme is known as binomial nomenclature, or you can say that plants have given a name, organism have given a name which has two parts. The first part represents generic name and is start with capital letter. Second name starts with small letter and is species name, and this scheme is called binomial nomenclature. So as it is written in the book, like Amalthas scientific name is Cassia fistula. इधर आप देखें Cassia is generic name, C is written with capital letter and fistula it is species name, F is written with small letter. And these names should be separately underlined. And remember कि ये तमाम नाम लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड हैं, लातीनी ज़ुबान से माखूज़ हैं. सिमिलरली साइंटिफिक नेम फॉर मैन इज़ होमो सैपियंस, लाइक H capital for homo its generic name, and sapiens S for sapiens species name written with small letter. Similarly, botanical name for potatoes is Solanum tuberosum. Solanum is generic name. It is written with capital letter Solanum, ये देखें, और tuberosum its species name written with T for tuberosum. Tuberosum, तो T is written with small letter its species name. Similarly, brinjal Solanum melangina. Solanum is generic name and melangina is species name Solanum written with capital letter and melangina M for species name written with small letter. And this scheme is internationally recognized, in which Solanum tuberosum and Solanum melangina, the same generic name for potato and brinjal. आलू का और ब्रिंजल मीन बैंगन का जो जेनरिक नेम है ये सिमिलर है सोलेनम. सोलेनम इट मीन्स कि इनका जो रिलेशनशिप है आपस में, जेनरिक नेम जीनस जो है वो सिमिलर है, तो इनका जो है आपस में इट रिफ्लेक्ट्स क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू जेनरा एक्चुअली. So this is very important, binomial nomenclature. Next, 2 to 5 kingdom system of classification. पहली लाइन में हेडिंग बना लें 2 kingdom system. So different classification system recognizes 2 to 6 नहीं है, यहाँ इसको 5 कर लें. ये बुक में मिस प्रिंट हुआ है, गलत लिखा हुआ है, 6 की जगह 5 किंगडम्स हैं. फॉर सेंचुरीज, सदियों तक, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. अभी तक आपने मैट्रिक में ये पढ़ा है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स की 2 किंगडम्स हैं. किंगडम प्लांटी जिसमें तमाम पौधे शामिल हैं, और किंगडम एनिमिलिया जिसमें को अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम अगर आप पढ़ते हैं, जैसे मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, तो वो स्टार्ट होती है किंगडम प्रोटोजुआ से.
जबकि अब फर्स्ट ईयर की बुक में आप फॉलो कर रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम। इसके अकॉर्डिंगली जो फाइलम प्रोटोजुआ है ये एनिमिलिया में शामिल नहीं होगा, बल्कि किंगडम प्रोटोक्टिस्टा जो कि चैप्टर नंबर 7 है आपका, उसमें आप लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग आपने बनाना है 2 किंगडम सिस्टम। इनिशियली शुरू में तमाम ऑर्गेनिजम्स को 2 ही कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, प्लांट लाइक और एनिमल लाइक, किंगडम प्लांटी एंड एनिमिलिया। सो प्लांट्स can prepare their own food from simple inorganic material, as you know कि plants are autotrophs while animals are heterotroph, they cannot make their own food. Next, make heading objection. Many biologists found this system satisfactory while others found it unworkable for many unicellular organisms like Euglena that have both plant-like करेक्टर्स एंड एनिमल लाइक करेक्टर्स। अब काफ़ी साइंटिस्ट ने कहा कि ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे यूग्लिना है जिसमें पौधों की तरह करेक्टर्स भी हैं। पौधों की तरह क्या करेक्टर है कि इसमें प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इट्स अ प्लांट लाइक करेक्टर, और एनिमल लाइक करेक्टर के लैक ऑफ सेल वॉल, मीन्स के ये इंटरमीडिएट है, पौधों की तरह भी है एनिमल की तरह भी है, तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाए। तो ये मैनी बायोलॉजिस्ट ने ऑब्जेक्शन पेश किया। And also because it ignores the differences between prokaryotic and eukaryotic cells. So इस तमाम चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक नई किंगडम बनाई गई। यहाँ आप हेडिंग बना लें, वर्क ऑफ अर्नेस्ट हैकेल in 1866. Ernest Haeckel proposed a third kingdom, Protista, to accommodate Euglena-like organisms and bacteria. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट भी कर लें और अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट, वर्क ऑफ ई चैटन, ये कोर साइंटिस्ट है। इन 1937 ई चैटन सजेस्टेड डिफ्रेंशिएटिंग द टर्म प्रोकैरियोटिक फ्रॉम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है, आप पीछे भी पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव सेल हैं, प्रो मीन प्रिमिटिव, कैरियन मीन न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोट्स आर primitive cell basically that lack proper nucleus with and also lack proper membrane bounded organelles. And eukaryotes, you mean Greek word, you mean true and carrion mean nucleus. So eukaryotes are basically modern cell or recent cell that have proper nucleus with proper membrane bounded organelles. So E. Chatton proposed these two terms, prokaryotic and eukaryotic, but the spellings are different here. Karyotic, TIQUE, not जैसा कि आपने पीछे 4th चैप्टर में पढ़ा है, प्रोकैरियोट्स के साथ नहीं है, ये सी के साथ है यहाँ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। ग्रीक वर्ड से ये हैं टर्मिनोलॉजीज डिराइव्ड की हुई। नेक्स्ट, मेक हेडिंग हेयर व्यू ऑफ सम बायोलॉजिस्ट। यहाँ हेडिंग बना लें view of some biologists. So some biologists also disagree about the classification of fungi such as bread, mold, yeast and mushrooms, which resembles plants in many ways but are not autotrophs. Fungi are special forms of heterotrophs that obtain energy and structural material by breaking down, decomposing and absorbing food. जैसा कि आप आगे चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ेंगे, और आपको पता है कि फंजाई जो है ये एक्ट एज डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स के तौर पे एक्ट करती है, डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, और ये ना प्लांट है ना एनिमल है। तो इसके करैक्टर्स आगे भी आप पढ़ेंगे कि बहुत डिफरेंट है। ये एक्ट एज अ डिकम्पोजर, और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खुराक हासिल करने का तरीका जो है वो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स है, यानी अपनी खुराक खुद भी नहीं बनाएगी और एब्जॉर्प्शन के ज़रिए जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेगी। तो फंजाई जो है ये क्वाइट यूनिक है, डिफरेंट है बाकी ऑर्गेनिजम्स की निस्बत। सो साइंटिस्ट सजेस्ट कि इसको एक अलग किंगडम दे दी जाए, जिसको किंगडम फंजाई का नाम दिया गया। नेक्स्ट, मेक हेडिंग 5 किंगडम सिस्टम ऑफ वाइटेकर। जब हम 5 किंगडम सिस्टम की बात करते हैं तो वाइटेकर 1969 का नाम जहन में आ जाता है, और इसी ने ही बेसिकली 5 किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया था। सो अ रिलेटिवली रिसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, द 5 किंगडम सिस्टम वाज proposed by Robert Whittaker in 1969. This system of classification is based on 3 different levels of cellular organization.
जब हम वाइटेकर के सिस्टम की बात करते हैं तो इसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए 3 क्राइटेरिया को लिया, जो क्या था। नंबर 1 सबसे पहला जो है वो ये है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, के मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खुराक हासिल करने का तरीका। आप देखें कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक हासिल करते हैं, फंजाई एब्जॉर्प्शन के ज़रिए, और एनिमल्स जो हैं ये इंजेशन के ज़रिए। इंजेशन मीन इनटेक ऑफ सॉलिड फूड, यानी खुराक मुंह के ज़रिए खाना। तो एनिमल्स जो हैं ये इंजेस्ट करते हैं खुराक को, प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज करते हैं, और फंजाई जो है ये एब्जॉर्प्शन के ज़रिए खुराक को लेती है। तो पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, के खुराक किस तरह से हासिल होगी। नेक्स्ट द 5 किंगडम जार, जो किंगडम्स थी वो क्या थी। नंबर 1 है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर आ जाता है किंगडम मोनेरा जिसको कहेंगे, किंगडम प्रोकैरियोट्स कहेंगे, और इसमें बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये शामिल हैं। चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ेंगे। ये देखें मोनेरा। नेक्स्ट किंगडम है यूकैरियोटिक प्रीडोमिनेंटली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रीडोमिनेंटली यानी ज़्यादातर, मुकम्मल तौर पे उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली यानी, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिसका नाम है प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा भी इसको बोलेंगे। और ये चैप्टर नंबर 7 में आप इन डिटेल पढ़ेंगे, सच एज जुगलीना एंड अमेबा लाइक ऑर्गेनिजम्स। थर्ड किंगडम इज़ प्लांटी, जिसके अंदर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्राफ्स शामिल हैं, सारे पौधे यानी जितने भी आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर। नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर रेड्यूसर्स। रेड्यूसर्स मीन्स रेड्यूस करने वाले यानी डिकम्पोज करने वाले, जिसमें फंजाई जो है ये शामिल है, और ये चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ेंगे, जिसमें मशरूम्स वगैरह शामिल हैं। और लास्ट में जो लास्ट 5th किंगडम है, 5th वन, ये क्या है, ये है यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स, यानी हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाएंगे बल्कि कंज्यूम करेंगे बनी बनाई खुराक को। और इसमें शामिल हैं किंगडम एनिमिलिया, यानी तमाम एनिमल्स आप इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था 5 किंगडम सिस्टम बाय रॉबर्ट वाइटेकर का, जो कि आपकी बुक जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10th तक ये शामिल है, और इसमें आप हर किंगडम को इन डिटेल देखेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 70। ये जो बातें आपको मैंने बताई हैं ये सारा यही दिया हुआ है। बेसिकली अगर आप देखें तो एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड दे लैक सेलुलोज एंड शो मूवमेंट, और प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स बिकॉज they can make their own food, they are autotrophs, so these are the main differences. Next, लास्ट में आप हेडिंग बना लें, these lines are important, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इतना भी कर लें तो काफ़ी है आपके लिए। लास्ट में हेडिंग बना लीजिए 5 किंगडम सिस्टम्स ऑफ मार्गुलस एंड शिवार्ड्स। Basically, in 1988, Margulis and Schwartz modified 5 kingdom systems of Robert Whittaker by considering cellular organization, mode of nutrition, and after studying cytology, genetics, and organelles of symbiotic origin. ये organelles of symbiotic origin की जब बात की जाए तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की बात आती है एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप सेकेंड ईयर में एवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बेसिकली 2 ऑर्गेनेलीज ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनकी जो 5 किंगडम सिस्टम थी, इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक मोनेरा, प्रोटोक्टिस्टा प्रोटिस्टा, प्लांटी प्लांट्स, एनिमिलिया एनिमल्स एंड फंजाई। सो ये आप देखें, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, रिलेशनशिप ऑफ 5 किंगडम सिस्टम। एक ट्री, एवोल्यूशनरी ट्री भी इसको बोल सकते हैं। इसमें आप देखें सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ वो प्रोकैरियोट्स यानी मोनेरा से हुआ, बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। तो दीज आर बेसिकली इंसेस्टर्स। और प्रोकैरियोट्स के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हुए वो कौन से थे, वो हैं प्रोटोक्टिस्टा, जिसमें पैरामीशियम आ जाता है, अमेबा लाइक ऑर्गेनिजम्स और युग्लिना लाइक। और फिर अगर देखा जाए तो एनिमिलिया, फंजाई और प्लांटी का ओरिजिन
प्रोटोक्टिस्टा से डिफरेंट लाइंस की बेसिस पे हुआ। तो ये एक रिलेशनशिप ऑफ 5 किंगडम सिस्टम दिखाया गया है यहाँ। ये देखिए इंसेस्टर जो है यानी तमाम किंगडम्स का जो ओरिजिन है या जितने भी यूकरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, प्रोकरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, यानी प्रो मीन प्रिमिटिव और कैरियन मीन न्यूक्लियस। सो बैक्टीरिया एंड सियानो बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्जी से तमाम यूकरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन हुआ है। ये सारा आप चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10th तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज पेज नंबर 71 और इसमें एक ये भी एवोल्यूशनरी ट्री दिखाया गया है जिसमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय रॉबर्ट वाइटेकर। इसके अकॉर्डिंगली भी अगर आप देखें तो सबसे पहले जो इंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर बेसिकली प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की भी टाइप्स हो जाती हैं, इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं और कुछ सियानोबैक्टीरिया हैं। और सियानोबैक्टीरिया से ही ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट हुआ और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो हैं या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनसे ख्याल ये किया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन हुआ। देन प्रोकैरियोट से जो नेक्स्ट किंगडम ओरिजिनेट हुई वो थी सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आ जाता है किंगडम प्रोकैरियोटी प्रोटोक्टिस्टा। यानी प्रोकैरियोटिक मोनरा के बाद कौन सी किंगडम बनी, प्रोटोक्टिस्टा, जिसमें सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये प्रोटिस्ट चाहे डायटोम्स हों, यीस्ट हो, प्रोटोजुआ हो या सिलिएट्स हों, डाइनोफ्लैजिलेट्स हों और अमेबा लाइक ऑर्गेनिजम्स हों, दे आर ऑल सिंगल सेल्ड बट दे आर यूकैरियोट। ये यूकैरियोट्स हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो प्रोटोक्टिस्टा के बाद ओरिजिन हुआ मुख्तलिफ लाइंस में प्लांटी का, जिसमें ग्रीन एल्जी से ख्याल ये किया जाता है कि मॉसिस का ओरिजिन हुआ, ब्रायोफाइट्स बने, देन टेरिडोफाइट्स बने और देन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म बने और प्लांटी का ओरिजिन इस तरह से हुआ। और स्लाइम मोल्ड्स या यीस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म से फंजाई एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स या फंजाई का ओरिजिन हुआ जो कि एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्राफ्स हैं। और अमेबा लाइक ऑर्गेनिजम्स से ख्याल ये किया जाता है एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्पोंचीज या सिलेंट्रेट्स या नेमाटोड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स वगैरह ओरिजिनेट हुए। और इसके जैसे आपको पता है कि एनिमिलिया के 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। और इनवर्टिब्रेट्स पहले ओरिजिनेट हुए, देन वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हुए, जिसकी तमाम डिटेल आप चैप्टर नंबर 10th में आगे पढ़ेंगे। तो ये एनिमिलिया इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ इंजेशन। इंजेशन मीन इनटेक ऑफ फूड, यानी खुराक को मुंह के ज़रिए खाना। जबकि फंजाई जो हैं ये ख्याल रहे कि ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये एब्जॉर्प्शन के ज़रिए खुराक लेंगी और एब्जॉर्प्शन होगी थ्रू राइजोइड्स। दीज आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बट नॉट रूट्स। एंड प्लांटी इज includes all the plants. Plants are autotrophic, they are photosynthetic, they make their own food. So this is the relationship of 5 kingdom systems. ये जैसे जैसे आप चैप्टर नंबर 6 से 10 तक पढ़ेंगे ये आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट 5 किंगडम सिस्टम बाय रॉबर्ट वाइटेकर। Zoom Seek Bar 1X